And welcome. In this video, we will be talking about the Unit 3 of Universal Human Values, UHV. The Unit 3 is Harmony in Relationships and Society, which is divided into majorly two parts. The first part is Harmony in Human-Human Relationships, and the second part is Harmony in Society. And since I know that most of you will be watching this video a few hours prior to your exam, so we will be keeping this short and crisp. Also, if you are worried about the exam or anything, please do not be worried. This is a very intuitive subject, and I'm sure if you just listen to the video once, you will be able to give the correct answer. So, अगर हमें समझना है सबसे पहले हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स तो हमें समझना पड़ेगा व्हाट आर रिलेशनशिप्स. Relationships exist between oneself and another self, not just between bodies. Here by self, I mean the individual, the conscience, the I that we are talking about, not the body. And these relationships are built upon feelings. There are 9 fundamental feelings, which are namely trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude, and the total absolution of it all, love. So don't worry about it. All of these are there in detail. Abhi, I'm just giving you an overview of it. So when we understand and ensure that these feelings between within ourselves and the person we are in a relationship with, they lead to mutual happiness. And harmony in relationships require 3 things which come under justice. So अब ये justice कहाँ से आ गया, ये एक question होगा. तो justice जो है ना, ये 9 feelings जो मैंने अभी बताई, उसका जो base है, that is justice. Justice इस term में है ये कि if we are doing justice to our relationships, we will be doing these 3 things. What are these 3 things? They are 1, recognition, that is understanding. We will be understanding the other person in the relationship. The second is fulfillment. We will be fulfilling their needs, their whatever they need, that. And the third is evaluation. We will be evaluating if the other person is doing the same for us. Because otherwise, if we are just putting in all the effort, or if just one party is putting in all the efforts and the other party is not doing those, then it is simply not a conducive environment for a mutually happy relationship. और ये बात भी बहुत ही basic or fundamental है that if 2 people are in a relationship, and this relationship can be anything. It can be 2 friends, it can be 2 peers, it can be a teacher-student relationship, a parent-child relationship, anything. It is that both the parties need something or the other from the other party. And if those needs are not being recognized and fulfilled by both the parties, then it is simply grounds for a disharmonious relationship. तो इसमें हमने रोल ऑफ वैल्यूज भी बात किया कि जो 9 यूनिवर्सल वैल्यूज आई टोल्ड यू अबाउट, टू रीइटरेट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. The first one is trust, the second is respect. अच्छा हाँ, इन 9 में से भी trust and respect are even more important बाकी सब में से, because इनके individual questions भी आते हैं और इनके differentiating भी आ जाता है trust और respect का. So they are quite important and these are the 2 foundational values. बाकी के trust, respect, affection, care, guidance, reverence, glory, gratitude and love. तो ये आपको याद रखना है. Now moving on to trust and respect. So what is trust पहले तो? Trust is assurance. Simple अगर मैं समझाऊँ तो trust is assurance that the other person intends to make you happy and prosperous. Trust is the feeling that you realize कि सामने वाला बंदा मेरा भला ही चाहता है. The other person does not want to dupe me, does not want to in any way fleece me. वो किसी भी प्रकार से मेरा बुरा नहीं चाहता है. जब ये फीलिंग आपको किसी के प्रति आती है, so that is trust. एंड इसमें रिस्पेक्ट अगर हम इसके कंट्रास्ट में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज रिस्पेक्ट में आई एम जस्ट
skipping a few slides because I want to tell you about respect first. Respect is the right evaluation of the other's intention and competence. अब इस लाइन से हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज इंटेंशन एंड कंपीटेंस. सो व्हाट इज इंटेंशन एंड कंपीटेंस? देखो, intention is the natural acceptance to make the other person happy. For example, मैं आपको खुश करना चाहती हूँ. That is my intention. My intention is to make you happy. My intention is to make you feel safe. And competence क्या है? Competence is the ability to translate this intention into action. मतलब कि कंपीटेंस वो हो गया कि मैं आपको खुश तो करना चाहती हूँ, पर आपको खुश होना है फॉर एग्जांपल एक फेरारी से, तो उसमें मेरे पास कंपीटेंस है कि नहीं कि मैं आपको खुश कर पा रही हूँ. इवन तो मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है, पर क्या मेरे पास वो क्षमता है कि मैं आपको खुश कर पाऊँ? सो दैट इज इंटेंशन वर्सेस कंपीटेंस. कंपीटेंस इज एबिलिटी टू ट्रांसलेट योर इंटेंशन इनटू एक्शन. अब इसमें ना एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है हमसे, जिससे हमारा ट्रस्ट जो है इन रिलेशनशिप दैट इरोड्स. क्या मिस्टेक हो जाती है कि हम खुद को तो इवैल्यूएट करते हैं इंटेंशन के बेसिस पे, और दूसरों को इवैल्यूएट करते हैं हम उनकी कंपीटेंस के बेसिस पे. इसको एक एग्जांपल से समझो. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमने किसी को कुछ करना था, हमारी इंटेंशन तो अच्छी थी, पर हो उसका नुकसान गया. हम चाहते उसका भला थे, पर हो उसका नुकसान गया. तो हम खुद को कैसे जज करेंगे कि भाई मेरी इंटेंशन तो सही थी ना, इंटेंशन तो गलत नहीं थी, मैंने उसका करना तो अच्छा ही चाहा, हो बुरा गया. और दूसरे बंदे को, अब सिनेरियो को फ्लिप करो, अगर दूसरे बंदे ने यही किया हो, तो हम क्या बोलेंगे कि इवन दो उसकी इंटेंशन ठीक थी, इंटेंशन ठीक हो ना हो उससे मुझे क्या लेना देना भाई, उसका हम कंपीटेंस के बेसिस पे जज करेंगे और बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हो तो मेरा बुरा ही गया ना. तो ये कॉमन मिस्टेक है, और इससे हमारा किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो है वो इरोड होता है. हमें क्या करना है, हमें दोनों को, खुद को और सामने वाले बंदे को, एक एट पार देख के इवैल्यूएट करना है. और जब ये होता है ना, ट्रस्ट होता है, तो ट्रस्ट से ये एक चीज़ होती है कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं कंपीटेंस को, और इंटेंशन को हम डाउट नहीं करते हैं. और विदाउट ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो रिलेशनशिप्स हैं वो कंडीशनल हो जाते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड देन दोज आर नॉट हार्मोनियस रिलेशनशिप्स. मूविंग ऑन, intention and competence we have already talked about, and then we have respect. So what is respect? Respect की आसान सी परिभाषा ये होगी कि सामने वाले को recognize करना मेरे जैसा ही. For example, respect is recognizing the other person as similar to oneself. उसको मानना कि वो मेरे जैसा ही है. किस किस चीज़ के बेसिस पे? 3 चीज़ें: पर्पस, प्रोग्राम एंड पोटेंशियल. अब देखो, पर्पस इज दैट हम दोनों का सेम ही पर्पस है. इसको एग्जांपल से समझो तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव द सेम पर्पस ऑफ प्लेसमेंट. तो सेम पर्पस है आपका, प्रोग्राम भी सेम ही है, मोर और लेस ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग द सेम पाथ. सब लोग डीएसए कर रहे हैं, सब लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, लीड कोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. तो यू आर सिमिलर इन पर्पस, यू आर सिमिलर इन प्रोग्राम, एंड ऑल्सो यू आर सिमिलर इन पोटेंशियल. सब सेम ही रैंक के बेसिस पे आए थे, सबका पोटेंशियल भी मोर और लेस सिमिलर ही है, सब में सेम ही दिमाग है. सो दैट इज रिस्पेक्टिंग योर पीयर्स. यू रिकॉग्नाइज दैट दे आर सिमिलर टू यू, एंड यू आर नॉट अंडर इवैल्यूएटिंग, ओवर इवैल्यूएटिंग और अदरवाइज इवैल्यूएटिंग योर पीयर्स. अब ये जो 3 टर्म्स मैंने बोली, इसका क्या मतलब है? ये आती हैं डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में. डिसरिस्पेक्ट की कैटेगरी में क्या आती हैं कि ओवर इवैल्यूएशन तो हो गया फ्लैटरी, दैट यू आर जस्ट आप किसी को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा बढ़िया मान रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू जिस चीज़ पे आप उसे जज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत ही एफ्लुएंशियल है, सो यू आर थिंकिंग दैट मे बी दिस पर्सन इज गोइंग टू डू गुड इन देयर लाइफ. तो that is over evaluation. Under evaluation is that you are evaluating someone on the basis of their gender, their caste, creed, their religion or anything, and you are thinking of them as less for it.
और ये सारी चीज़ें खुद के साथ भी कर सकते हो आप. यू कैन ओवर इवेल्युएट योर सेल्फ. आप खुद को समझ रहे हो कि मैं तो 500 पेज की पीडीएफ जो है वो एक ही घंटे में निपटा लूंगा. So that is over evaluating yourself. Unless you're like some sort of superhuman, then congratulations, I guess. And under evaluation, also, a lot of people do this. They underestimate themselves. They have the problem of underconfidence. तो ये भी नहीं करना है. And otherwise, evaluation is that you are just, not even confining yourselves to the things that that person is, और आप उसको कुछ अलग ही चीज बोल रहे हो, जैसे you are donkey. So that does not make sense at all. Now, moving on, we have respect versus differentiation. So this is also a very important topic. Respect versus differentiation में क्या है? Respect की मैंने क्या आपको definition बताई थी? Respect is recognizing the other as similar to oneself in purpose, program and potential. ये तीन चीजें. और differentiation क्या हो जाएगी? डिफ्रेंसिएशन इज हम रिस्पेक्ट में सिमिलर मान रहे थे और डिफ्रेंसिएशन और डिसरिस्पेक्ट में हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. इट अराइजेस फ्रॉम जजिंग अदर्स और जज तो हमें करना ही नहीं है. ये जो जजिंग है इट कैन बी ऑन बेसिस ऑफ सेवरल थिंग्स, जैसे जजिंग ऑन अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, देयर पोजिशन या अपीयरेंस या एज या जेंडर या रेस या इज़म्स और सेक्स. इसमें इज़म्स जो हो जाएंगे ये आपके स्कूल्स ऑफ थॉट हो जाएंगे, जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया या फिर लिबरलिज्म हो गया या फिर कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, all of those. So judging anyone on the basis of anything other than their skill and their self is disrespect. और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी को कंडीशनल रिस्पेक्ट भी दे रहे हो ना, कि वो बंदा तो बड़ी हाई पोस्ट पे है सो देयरफॉर आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन, तो दैट इज ऑल्सो एसेंशियली डिसरिस्पेक्ट ओनली, क्योंकि आपने उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करी, आपने उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करी. उस बंदे की तो डिसरिस्पेक्ट ही थी. तो अगर आप ट्रू रिस्पेक्ट की डेफिनेशन लोगे, सो इट इज अनकंडीशनल. इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कंडीशंस दैट यू आर इम्पोजिंग. इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ इवैल्यूएशन. आपने उस बंदे के सेल्फ का इवैल्यूएशन किया, ना कि किसी एक्सटर्नल ट्रेट्स का. और रिस्पेक्ट से होता क्या है? रिस्पेक्ट प्रमोट्स इक्वालिटी and it promotes complementarity and understanding. So respect is a very important foundational feeling जो हमने बात करी ना, that is respect. Moving on, we have the other salient values. Now other salient values क्या हैं हमारी? अफेक्शन, स्नेह. ये हिंदी वाले जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है ना, ये भी आप लिख देना, बिकॉज दे आर मेनी टाइम्स एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम्स एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट इंट्यूटिव. तो अफेक्शन इज स्नेह. एंड दिस, अगर मैं आपको एक दो वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब करना हो तो आई विल डिस्क्राइब इट एज वार्मथ, the feeling of being related to the other person. For example, I feel affection for my little siblings. So this emotional bonding की जो feeling है, that is affection. The second one is care, mamta. Now mamta से we do not have to necessarily associate it with the feeling of motherhood, but it is the feeling of concern, आप ये मान सकते हो, for physical and emotional and all sorts of mental well-being of the other person. तो इसमें हम जैसे बोलते हैं ना, this is the mother hen of the group, this is the mother of the group. तो इसमें इसका मतलब ये है कि वो वाला दोस्त is very caring, he is caring about the other person's other friends needs, उसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, etc. Moving on, we have guidance, which is vatsalya. So guidance is helping others evolve and grow, and it is the feeling of responsibility. कि इसमें आप जो हो बड़े सिबलिंग हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप वो फ्रेंड हो जो बाकी लोगों के मेंटल और प्रोफेशनल वेलबींग, इन सब वेलबींग का ख्याल रख रहे हो. सो यू आर इन दैट वात्सल्य वाला मोड, दैट गाइडेंस वाली फीलिंग आपकी है. मूविंग ऑन, वी हैव रेवरेंस. रेवरेंस इज श्रद्धा. सो श्रद्धा में वी गेट रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड मेंटर्स बेसिकली. इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. और फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेलेंस, हाँ इसमें एक चीज़ होती है रेवरेंस और ग्लोरी के बीच में डिफरेंस.
तो ये समझो, ग्लोरी जो होती है ना, दैट इज अप्रिसिएशन फॉर एक्सीलेंस, और खुद भी वो प्राप्त करने की इच्छा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवरेंस एंड ग्लोरी, कि रेवरेंस में यू एक्सेप्ट द एक्सीलेंस एंड यू सॉर्ट ऑफ वर्शिप इट. यू आर लाइक, हाँ वो बंदा तो कितना ग्रेट है और वो बंदा कितना अच्छा है, बस यहाँ तक जो फीलिंग है, दैट इज रेवरेंस एंड श्रद्धा. एंड ग्लोरी में यू आर फीलिंग दिस फीलिंग ऑफ कि मुझे भी उसके जैसा बनना है, वो गौरव का जो फीलिंग है, दैट इज ग्लोरी. देन वी हैव द एट्थ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, which is कृतज्ञता. So कृतज्ञता is basically thankfulness for the others' contribution, and this feeling is for those who have helped you in growing in any way. So that is कृतज्ञता. Moving on, we are moving to the last and the most important feeling of all, arguably, which is love. So, love is complete and unconditional acceptance. अब इसमें हम क्या बात करते हैं, कंप्लीट एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस में, कि सामने वाले के जो भी अवगुण हैं, दोष हैं, कोई भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ भी है, तो उसको नॉट ओनली यू हैव, ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, यू हैव एक्सेप्टेड दोस. You are not trying to fix the person in any way. You have accepted that the other person comes with these certain flaws, because to be human is to err, and you have accepted it. And that complete and unconditional acceptance for everything a person is called love. और यही एक्सेप्टेंस हमें एक बंदे तक सीमित नहीं रखनी है. वी हैव टू extend it to everybody. पहले आप अपने you love your family, and then you love another person, and then you love your society and your country, and then you love the world. क्योंकि essentially the world is one big family. Vasudhaiv Kutumbakam. That's what our culture teaches us. Moving on, we have finished the first part, and this is the second part, which is part 2, harmony in society. And harmony in society से हम ये समझते हैं कि family is the foundation for society. क्योंकि देखो, एक फैमिली का बिल्डिंग ब्लॉक या फिर एक यूनिट मान लो, दैट इज एन इंडिविजुअल, और फिर इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली से सोसाइटी बनी, सोसाइटी से सिटी बनी, सिटी से स्टेट बनी, स्टेट से मिलके कंट्री बनी, कंट्री से मिलके वर्ल्ड बना, एंड देन इट इज अगेन वन बिग होल फैमिली. एंड दैट इज हाउ वी एम, कि अगर अभी हमारे मन में ऐसे विचार भाव नहीं भी आ रहे हैं, सो वंस वी अटेन दैट राइट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट वी आर होपिंग फॉर. सो इसमें हम यही समझते हैं कि सोसाइटी इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली, एंड हार्मनी इन द फैमिली prepares us for harmony in the community and beyond. अगर मेरे परिवार में ही सुख शांति नहीं है, my family is not a happy cooperating unit, then I cannot prepare for this harmony in the community and then beyond it also. Social harmony is achieved through trust, respect, justice and mutual cooperation. This is also very basic, and this is like we just studied about this. हमने ह्यूमन रिलेशनशिप्स में पढ़ा अभी इसके पार्ट 1 में, वही पार्ट 2 में सेम उसी की एक्सटेंशन है. वी आर जस्ट अप्लाइंग इट टू अ लार्जर स्कोप. तो सोशल हार्मनी भी, जैसे वहाँ पे ट्रस्ट होता था, यहाँ पे भी ट्रस्ट है, वहाँ पे रिस्पेक्ट था, वहाँ पे भी रिस्पेक्ट है, वहाँ पे जस्टिस था, यहाँ पे भी जस्टिस है. और extra thing is mutual cooperation, because we have so many different units now added, so we need mutual cooperation of all these people. And हमारा गोल क्या रहेगा इसमें? Our goal is undivided society that envisions all humans as one family, the अखंड अखिल समाज, undivided society ही हमारा end goal है इसके लिए. Also, there are 4 comprehensive goals. इसको एक बात से ये मान सकते हैं कि हमारे टू डू लिस्ट पे क्या क्या है. 4 comprehensive goals. These are the goals. The first one is resolution या समाधान. इसको मैं आपको एक familiar term से बताना चाहूँ तो I'll tell you as right understanding.
एंड दिस इज ऑन अ बेसिक लेवल. इस पे आप 4 गोल्स देखेंगे ना, 4 गोल्स जो है वो एक एक लेवल ऊपर होता जाएगा. फर्स्ट गोल इज इन एवरी इंडिविजुअल. जो समाधान है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग और रेजोल्यूशन है, वो हर इंडिविजुअल में आनी चाहिए. अचीविंग दिस राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, ओनली दैट कैन लीड टू अ फीलिंग ऑफ हार्मनी एंड कंटेंटमेंट. जो एक होता है ना सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट की फीलिंग, आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा कि सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, मकान है, पर क्या नहीं है कि कंटेंटमेंट नहीं है. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. तो सेटिस्फैक्शन की जो वो फीलिंग है वो राइट अंडरस्टैंडिंग से ही आएगी. चाहे आप कितना ही पैसा, कितनी ही फिजिकल फैसिलिटी कुछ भी कमा लो, वो आपको उससे नहीं मिलेगी, फिजिकल फैसिलिटी से नहीं मिलेगी. राइट अंडरस्टैंडिंग से ही फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी. दैट इज द गोल फॉर इंडिविजुअल. देन व्हाट इज द गोल फॉर फैमिली? तो एवरी फैमिली के लिए आवर गोल इज प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द वर्ड समृद्धि? वी गेट कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा है. Once we have managed to accumulate and procure more than we need as a family, we can say that we are prosperous. अगर मुझे आज 4 रोटी खानी है और मेरे घर पर 10 अवेलेबल हैं, मुझे कमी नहीं पड़ रही है किसी चीज़ की, then we are prosperous. Moving on, we have our third and fourth goals which are fearlessness और trust. या इसको हिंदी में बोलेंगे अभय. अब देखो, इसमें fearlessness को हमने trust से क्यों स्लैश में लिखा है? This is because trust is only when you are not afraid of the person. अगर मुझे किसी से डर लगता होगा तो I will not be able to trust that person, and if I trust a person then I know कि वो कुछ भी करे, that person is not going to cause me harm, so I'm not afraid of that person. It's very common. अब इसमें ट्रस्ट में हम क्या समझते हैं? ट्रस्ट इज लिविंग विद द अश्योरेंस in human relationships. It is that I trust that this person, this society, this system that I have built around me is not going to harm me, and thus this is going to be a society free from fear. The fourth is going to be coexistence, which is sah astitva. This means that this is on the fourth and the highest level, on the level of nature and existence. And this is living in harmony with nature and all its beings. We as humans are not the sole, users and the sole organisms that exist on the earth. There are other organisms, other animals, other species that are existence, and it is as much their home as it is ours. So coexistence or Saha Astitva says that we are not exploiting the nature for our petty human material gains. That is the core of coexistence. Now moving on, we have the vision, the universal harmonious order. Once we have achieved these 4 goals on the 4 levels, on the individual level, on the family wala level, on the society wala level, and then on the nature या existence wala level, we realize that together they lead to complete human fulfillment. जब ये सारे goals fulfill हो जाएंगे तो पूरे human as a race की fulfillment हो जाएगी. और इसमें हमारा हारमोनियस ऑर्डर क्या है? यूनिवर्सल हारमोनियस ऑर्डर. इट सेज दैट अ यूनिवर्सल ऑर्डर एक्सटेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू फैमिली टू सोसाइटी टू वर्ल्ड फैमिली, विच इज अगेन वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है. और इसमें वर्ल्ड फैमिली जो है ना, उसमें ही हमारा आता है अनडिवाइडेड सोसाइटी, जो हमने पहले बात करी थी, अखंड अखिल समाज की. और अनडिवाइडेड सोसाइटी से क्या होता है? दैट एवरीवन लिव्स विद म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. और यूनिवर्सल ऑर्डर का क्या हमारा वो है कि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस एट ऑल लेवल्स is our universal order, and the vision that we are working with is Vasudhaiv Kutumbakam, the world as one family. तो ये आपका यूनिट 3 था for UHV, and I will be attaching this PPT that I've been showing you on the screen, and then I'll attach some of my notes
which are very succinct and short. And in case you would want the notes which cover all the PYQs and have detailed answers and all the detailed theory, then you can also go for those. So, all the best for your exams, and I hope you have a good time.